These days, children are on many social networking sites. So we must be very, very particular and take precautions that these remain protected. For this change, I will suggest that you need to keep changing password from time to time so that it is not hacked. Secondly, never involve yourself in cyber bullying or cyber harassing for anybody on the whether it is Facebook or any social networking site. I will also suggest that never do online shopping from unknown sites because that may lead to many problems. Your account, your bank account may be hacked. One thing more I would like to say that on the social networking sites, don't chat with unknown people. That again may lead you into any kind of problem. Good afternoon, students. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I earnestly wish you all to be virtuous, ethical in your conduct. Indulging in posting unethical remarks against anyone brings embarrassment not only to the parents but also to those who are associated with the person. The advancement in the technology should be used as a ladder to reach the unimaginable heights of progress and making one's individuality where it should be that you are able to expose your achievements. I would like all my students to work on the same lines and to be more virtuous and full of having good values which are imbibed within them. I wish you all the success in life. Being a law student, I would definitely go in cyber law and security. So in the era of cyber world, as the usage of computer became very popular, there was expansion in the growth of technology. Cyber became very powerful. And being a law student, there are several technology acts and protection act for who done the crimes in the field of cyber. So cyber crime may be act as unlawful act when the computer is either a tool or target or both. The world's first specific law enacted in the year 1970. It was named as Data Protection Act 1970. After that, several amendments and passed by the Indian Parliament, and finally, Information Technology Act 2000 was passed, and it covered all the cyber crimes which have happened in the country like India. The internet is the need of today's youth. Even if a person is illiterate, he or she knows that how to do surfing on internet. In today's fast and paceful life, internet is used for every age group. It is used in many activities. But there are people who misuse it and do cyberbullying, make fake IDs and hack others' accounts. आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य, आप इंटरनेट क्यों यूज़ करते हो? इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है या फिर अगर कोई जर्नल जानना होता है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे गेम्स वगैरह भी खेलते हो? कभी कभार। तो आपको कभी इंटरनेट पे प्रॉब्लम आती है यूज़ करते वक्त, कोई एड्स वगैरह आ रहे हो? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे मैं कोई इंस्ट्रक्शन ले रहा होता हूँ लिख के वहाँ पे, तो बीच में ऐड आता है। तो आप उनसे कैसे टैकल करते हो प्रॉब्लम? उसमें एक बटन होता है, उसमें इसमें लिखा होता है कि रिमूव दिस ऐड और बाकी ऑप्शंस होते हैं। तो रिमूव दिस ऐड होता है तो उसमें आगे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्यों रिमूव करना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वो स्पेस कवर करता है, तो वो फीडबैक उनको दे देता है और वो ऐड हट जाता है। और आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हो अभी? जीमेल, मेल? थैंक यू। आप नेट किस लिए यूज़ करते हैं? अपने सोशल साइट्स पे अपने ऑफिस वर्क के लिए। ऑफिस वर्क में मतलब जीमेल वगैरह के लिए? हाँ, जीमेल भी है। दूसरा हमारा जैसे ऑफिस का एक अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, हम उस पर ऑफिस की मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हो तो आपको कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ लीक वगैरह हो जाए? नहीं, ऐसे जर्नल जो सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स हम लोग वो नहीं होता, जो जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है खाली वही। और आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं? नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं।
तो उसमें आप मतलब कैसे पासवर्ड्स वगैरह कैसे सिक्योर रख पाते हैं अपने आजकल इतना टाइम हो रहा है? पासवर्ड्स वगैरह जैसे टाइमली अपना चेंज करता रहता हूँ, किसी और को बताना नहीं होता, मतलब अपने तक ही सीमित रखता हूँ उस चीज़ को। और कम से कम मैं नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मतलब मस्ट ही है कि भाई ठीक है मैं प्रॉब्लम में हूँ तभी उसको यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ मैं दूसरे सोर्सेज से ही एंड आपके जो बच्चे हैं उनसे आप कैसे चेक रखते हो कि वो जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो सही यूज़ कर रहे हैं? कभी कभी जैसे मेरा बेटा देख रहा है कोई चीज़ तो मैं उसे देखता हूँ कि वो क्या चीज़ देख रहा है, फिर लास्ट में जो हिस्ट्री है वो खोल के देख लेना कि भाई क्या क्या चीज़ उन्होंने देखी है, और थोड़ा कंट्रोल रखना, कम से कम यूज़ करें जितना एंड जरूरत सोशल है। नेटवर्किंग साइट्स पे अभी आप अलाउ करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अभी सोशल साइट्स पे, क्योंकि सोशल साइट्स पे बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी उसकी समझ, जो उसकी एज की जो समझ है उससे ऊपर है, क्योंकि उसमें बहकाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी उसे मना करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम My name is Neil Bashmi. एंड where do you study? I study in class 5. In fifth class. Okay. So do you use internet? Yes, I use. Okay. So for what purposes? I use internet for Gmails. I use internet for downloading movies, songs, etc. I use internet for WhatsApp. I am also on it. And I use internet for Facebook. I use internet for taking out information, pictures, and so many things. Okay. So as you are on Facebook, so do you add the unknown people? No, I don't add the unknown people. Sometimes they can take my personal information. They can ask on me. Okay. They And could when be you hackers also. yes, and when you download stuff, so you download it from the trusted sites. Yes, Okay. Why do you download it from the trusted sites? because if I get some unknown source, I download from unknown source, I can get virus in my computer, and that virus can take my personal information and get it to hackers. Okay. Thank you so much. Thank you. मैम जैसे इसने बताया ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स वगैरह यूज़ करता है और अभी इस एज में बच्चे नहीं करते बट कर भी सकते हैं, पूरा वर्ल्ड करते हैं, तो आप इस पर कैसे चेक रखते हैं कि ये कुछ गलत नहीं कर रहा और आप कैसे चेक रखते हैं उसके ऊपर कि ये सही यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली मैं उसको हमेशा 5 मिनट के ऊपर चेक करती रहती हूँ, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। इसके व्हाट्सएप भी चेक करती हूँ और इसके फादर इसके ईमेल्स चेक करते हैं, इसकी फेसबुक चेक करते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली ऐसे चेक करते हैं, लेकिन वैसे ही कुछ गलत करता नहीं। थैंक यू। हेलो मैम। I'm fine. Ma'am, a cyber crime week is going on in our school, as you know. So, do you know basically what is cyber crime? Well, actually, I'm not very well aware about the cyber crime. I think जहाँ तक मुझे मालूम है, cyber crime is something किसी की पासवर्ड्स हैक करना, किसी की साइट्स हैक करना, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशंस करना, जैसे आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक में हैक करके कुछ उसमें गलत उसमें कुछ करना, कमेंट्स नहीं। आई थिंक दिस इज ऑल साइबर क्राइम। Yes, ma'am. So, मैम आप कैसे चेक आप अपने साइबर क्राइम से कैसे बचा सकते हैं? वेल एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि जो आज की जनरेशन है दैट इज़ वेरी वेल अवेयर कंप्यूटर से, उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है, वेयर जो हमारी जनरेशन है एज अ पेरेंट दे आर नॉट एट ऑल कंप्यूटर से, या उनको बहुत कम वेरी लेस लिटरेट अबाउट द कंप्यूटर्स, उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो ज़्यादा चेक रख नहीं पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी साइट खोलते हैं जो नॉट के देखने की है नहीं है, किसी भी साइट पर जाते हैं और उस साइट्स को वो देखते हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल सकता। हाँ, मैंने सुना है कि कंप्यूटर हिस्ट्री से आप उसे चेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर हिस्ट्री डिलीट भी हो जाती है, तो हाउ विल यू चेक? ये पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसके लिए पेरेंट्स के लिए सेमिनार या कुछ ऐसी चीज़ें कंडक्ट होनी चाहिए, सो दैट कि पेरेंट्स को भी पता चले कि वो अपने बच्चों पर चेक कैसे रख सकते हैं। और दूसरा, आजकल आप देखो कोई भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट खोलो, उसके ऊपर साइड में एड्स आती रहती हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक। वो एड्स हैं, आप किसी भी ऐड पे आपने क्लिक किया, ऐसी भी साइट खुल जाती है, आपको नहीं पता। इवन बच्चे भी कई बार अनअवेयर भी उन साइट्स को खोल लेते हैं, साइट आ रही है, बड़ी अच्छा सा कुछ लग रहा है, बड़ी अट्रैक्टिव कोई साइट है, आपने उसे जाके क्लिक ऑफ अ माउस आपने वो साइट खोल ली, अब उसमें वो क्या है उस साइट में वो बच्चे को भी नहीं पता होता, कई बार दे आर ऑल्सो कॉट वेरी अनअवेयर कि उसमें है क्या, और ऐसी चीज़ों ऐसी साइट्स में वो पहुंच जाते हैं जहां उनको शायद अभी नहीं होती। थैंक यू सो मच।